Hello everyone, I am again in front of you today with a fresh video, and today again I am going to tell you about some very beautiful and rare words which are used in English, but these words can help you to get a very good band score. तो आज मैं आपने बड़े ध्यान से पूरी वीडियो आप सबने देखनी है एंड सारे वर्ड्स मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो सुनते सुनते ये सारे वर्ड्स लर्न कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको यूज़ करो। आपने जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी आप सारे वर्ड्स नोट करते जाना। इट विल बी बेटर इफ़ यू हैव अ नोटबुक एंड पेन, आपके पास इस टाइम अगर है तो आप सब नोट करते जाएं and learn karte jaye. Okay, so without wasting any time I am telling you about the first word. The first word is vegetate. Vegetate means to spend time in a dull and inactive way. Spend time in a dull, there are two words, dull and inactive. Dull means you are not doing any kind of activity which is exciting for you, for which you feel enthusiastic about that particular activity. You are doing nothing. Dull and inactive also. Inactive means you are feeling lazy, lethargic. आप आलस में हो, जैसे कि हम सबके साथ होता है छुट्टी वाले दिन, स्पेशली संडे वाले दिन हम कुछ नहीं कर रहे. वी आर डूइंग नथिंग बट जस्ट लाइंग इन अवर बेड, वी आर डूइंग नथिंग एट ऑल. तो अगर हम कुछ काम कर रहे हैं इसका मतलब वी आर एक्टिव. अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं देन ऑल्सो वी आर spending time in an interesting manner. But if we are spending time in a dull and inactive way, it means that we are vegetating. So the verb that is used to define this particular condition is known as vegetate. The second word is expiate. Expiate means make amends or reparation for wrongdoing. इसका मतलब है जैसे किसी ने कोई गलत काम किया और अब उसको पछतावा हो रहा है कि मैंने वो काम क्यों किया, तो उस काम को की भरपाई करने के लिए उस गलत काम के जो रेपरकशंस हो सकते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं तो वो उसको ना फेस करने पड़े, तो कई लोग ऐसे करते हैं जैसे कई लोग गलत काम करते हैं और साथ साथ वो दान भी कर रहे हैं, लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं. तो जब वो ऐसे काम करते हैं इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, दे आर एक्सपिएटिंग. इट मीन्स दैट दे हैव कमिट सिंस, they have committed sins, crime or anything that is wrong, and now they are regretting their wrongdoings, and now they are compensating their wrongdoings by giving donation for a charity or helping a poor person. It means that they want to make amends. Make amend का मतलब होता है सुधारना, रिपेयर करना. रिपेरेशन, reparation and make amends both have the same meaning. Okay, for wrongdoing. So the word that represents this act is known as expiate. The third word is deprecate. Deprecate means express disapproval of something. It means that I hope that all of you are writing these words in your notebook. So ये जो word है deprecate, इसका मतलब होता है किसी के किए हुए कामों को हमेशा डाउन कर देना, डाउन करना. एप्रिशिएट का ऑपोजिट होता है डेप्रिकेट. इट इज द ऑपोजिट ऑफ एप्रिशिएट. इफ समवन इज एप्रिशिएटिंग मी, इट मींस दैट ही इज मोटिवेटिंग मी, he is encouraging me. So but if someone is deprecating me, it means that he is, what is he doing, he is underestimating my work. वो मेरे काम को underestimate कर रहा है अगर कोई, इसका मतलब वो मुझे क्या कर रहा है, डेप्रिकेट कर रहा है. तो डेप्रिकेट का मतलब होता है किसी के काम को डिसअप्रूव करना. ओके, उसको एनकरेज ना करना, किसी के काम में जो गलतियां कढ़ना ठीक होने के बावजूद
क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀ ਕੱਢੋਗੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ। and it means that you want to, what are you doing, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੈਪਰੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ, the next word is importune. Importune means harass somebody persistently to do something. किसी को कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए बार बार परेशान करना is known as importune. अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हो, जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपको आपके जो बॉस हैं वो बार बार आपको बोल रहे हैं कि your boss is saying that you have to complete this particular work in this particular time. मान लो 6 घंटे का काम और वो बोल रहे हैं नहीं 3 घंटों में सारा काम चाहिए उनको कंप्लीट। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, आपको हरास कर रहे हैं। हरास करने का ही जो अच्छा वर्ड है वो है importune. ओके, the next word is impute. Impute means attribute or to suggest that someone is guilty. इसका मतलब है किसी पे दोष लगाना, या हम बोलते हैं किसी को ब्लेम करना, इल्जाम लगाना किसी पे, तो इसको हम बोलते हैं impute. Okay, impute means that I am assigning, I am ascribing a particular wrong thing on someone, कि मैं किसी पे दोष लगा रही हूँ, जैसे कि ये काम आपने किया, अब ये पता नहीं कि वो काम उसने किया कि नहीं किया, वो गलत काम उन्होंने किया कि नहीं किया, बट मेरा दोष लगाना क्या कहलाएगा, that I am imputing that person, impute. The next word is mulct. Mulct means extract money from someone by fine or taxation. किसी तो पैसा लेना फाइन या टैक्सेशन दे ना ते, किसी नु चीट करना, cheat. Mulct means that we are cheating someone, and by cheating we are taking, extract का मतलब होता है take, लेना, take money. I am taking money. Like you may have seen, आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस के जो लोग होते हैं कई बार ऐसे करते हैं कि वो चालान काट देंगे और अननेसेसरली परेशान करेंगे कि इतना डिपॉजिट करो या इतना टैक्स या इतना फाइन करो, या अननेसेसरी टैक्स लग रहा है, किसी चीज पे जरूरत भी नहीं है, तो इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं कि ये मल्क्ट का मतलब होता है किसी को चीट करके उससे पैसे लेना। मतलब पैसे हम हथियार नहीं रहे, बट हम फाइन और टैक्सेशन के नाम पे अगर किसी से पैसे लेते हैं तो उसका मतलब होता है मल्क्ट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्ट्रेसाइज. ऑस्ट्रेसाइज मीन्स एक्सक्लूड फ्रॉम अ सोसाइटी और ग्रुप. किसी पर्सन को उसकी सोसाइटी या ग्रुप से बाहर निकाल देना ड्यू टू एनी रीजन इज नोन एज ऑस्ट्रेसाइज. ऑस्ट्रेसाइज करना, ठीक है। बाहर, एक्सक्लूड का क्या मतलब होता है, बाहर निकाल देना, बाहर निकालना। The next word is, last word is procrastinate. Procrastinate means to postpone, मतलब आज का काम कल पे टालना, इसको हम बोलते हैं procrastinate। और इसकी प्रोवर्ब भी है इंग्लिश में, procrastination is the thief of time, मतलब आज का काम कल पे टालना समय की बर्बादी है। तो प्रोक्रेस्टिनेट एक अच्छा वर्ड है अगर आप राइटिंग कर रहे हो या स्पीकिंग कर रहे हो, तो अगर आप ये वर्ड्स यूज करते हो इंस्टेड ऑफ द कॉमन वर्ड्स, देन यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड बैंड स्कोर इन आइल्स. Okay, so I am revising the words, I am repeating the words. The first word is vegetate, the second word is expiate, third word is deprecate, fourth word is importune, then impute, mulct, ostracize and procrastinate. So I hope ये words आपकी help करेंगे. Thank you.